Hello, good morning, welcome all of you. So, now let's start our today's session, which is going to be dealt with the chapter 1 chemical reactions and equation. So, in this session, we are going to discuss types of chemical reaction, means how many types of chemical reaction has. Okay, so actually chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. Means chemical reaction breaking and making of bond बनेगा and bond टूटेगा, produce new substance. So first category in this reaction is types of chemical reaction. जो first type है it is combination reaction. Okay, so combination reaction, see this example here. कैल्शियम ऑक्साइड, वी कैन ऑल्सो से क्विक लाइम, इसको हम क्विक लाइम भी बोल सकते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे एंड गिव्स यू और प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. हियर सी द सिंबल ऑफ एक्वस. एक्वस मीन्स डिजोल्व इन वाटर, मतलब ये पानी में घुला हुआ है, प्लस हीट. So see this calcium oxide or water and calcium slag lime is produced. So what is the combination reaction? So that combination reaction is when two or more substance, जब दो या दो से ज़्यादा substance, elements और compound, when two or more substance, elements और compound combine, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. मतलब देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज़ें हैं. सो दिस टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट. मतलब दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कंबाइन एंड प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंस सो दिस इज ऑल कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब कंबाइन हो जाना, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होना एंड प्रोड्यूस अ सिंगल substance. See the more examples of this reaction. Burning of coal, coal का जलाना. Carbon plus oxygen, here 1 and 2 both are combined and produce a carbon dioxide. See this formation of water from hydrogen and oxygen. See hydrogen, this is hydrogen and this is oxygen. So hydrogen and oxygen are combined and produce water. So both hydrogen and oxygen are combined and produce water. So combination reaction is when two or more substance, elements और compound combine, जब दो या दो से ज़्यादा substance और element combine होंगे to form a single product, the reaction are called combination reaction. This is first category. Now let's see one more example here. See this reaction once again. Calcium oxide plus water. Calcium oxide, this is CaO. Calcium oxide solid form, water liquid. So इसको जब आप डिजोल्व करोगे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में, इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एक्वस मीन्स डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ है, प्लस हीट. सो हियर सी दिस हीट. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. This is the another important category. Exothermic मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट इज रिलीज, हीट पैदा हो, मतलब रिएक्शन करवाने पर वो कोई चीज़ गर्म हो जाए या उसमें गर्मी पैदा होने लगे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product. See another examples of exothermic reaction. Other examples of exothermic. Burning of natural gas. This is natural gas, methane. Methane को जब हम burn करेंगे, when we burn methane with oxygen, it produce carbon dioxide plus water. So जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो obviously heat तो पैदा होगी ही सही. So this is also exothermic reaction. Now respiration. You know about this reaction in your biology. See this glucose and this is oxygen. Glucose and oxygen produce energy. मतलब जो भी हम खाना खाते हैं
वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब हम जो सांस के थ्रू लेते हैं. सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी. तो एनर्जी भी पैदा हो, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एनर्जी हो, हीट हो, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल reaction. This is most important chemical reaction. Now the decomposition, third category, see this, the decomposition of vegetable matter into compost. vegetable matter मतलब जो भी खाना बच रहा है vegetable into compost, उसका compost में convert हो जाना. the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. ये भी exothermic reaction का example है, जब vegetable matter decompose होगा तो. so this all are the important category. you have to learn, आपको ये याद करना है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स बना लें, इन्हीं में से एग्जाम में आने वाला है. आउट ऑफ दिस नन ऑफ द क्वेश्चन विल कम्स आउट. इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इनको नोट्स बनाएं अच्छे से और पढ़ें. नेक्स्ट decomposition reaction. next है decomposition reaction. okay, so what is decomposition reaction? see this decomposition reaction. see this is ferrous sulfate, and when you heat ferrous sulfate, this is ferrous sulfate, and when you heat ferrous sulfate, this is single product. यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है, सॉरी रिएक्टेंट, हियर इट इज़ रिएक्टेंट, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट. आप इसको हीट करोगे, दिस इज फेरस सल्फेट, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड SO3 गैस. सो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखो एक सिंगल प्रोडक्ट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट से, दिस इज सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है इस तरफ, एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं. ये जो रिएक्टेंट है ये A है और ये तीनों रिएक्टेंट है, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं. तो इन दिस रिएक्शन दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट. दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मीन्स ए सिंगल रिएक्टेंट decompose, a single reactant decompose and produce more than one product. so एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा क्या पैदा करे, प्रोडक्ट पैदा करता है, तो हम उसको बोलते हैं डीकम्पोज. मतलब डीकम्पोज हो जाना मतलब ब्रेक हो जाना. एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट. ठीक है. सी अनदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन यू हीट, दिस इज लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में लाइम स्टोन बोलते हैं हम इसको. इसको आप हीट करोगे, व्हेन यू हीट दिस क्विक लाइम CaO in solid state and carbon dioxide. so see calcium carbonate, it is single product and it is break down into two, it is single reactant and it is break down into calcium oxide and carbon dioxide. so see this is another important things, this is another important thing. see this, when a decomposition reaction, when और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू होती है, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट, मतलब हीट से हो डीकम्पोजिशन, किसी रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. हम उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे. सो दिस आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट हीट हीट. सो दिस ऑल आर also called thermal decomposition. here important point, thermal मतलब जब कोई हीट से डिकम्पोज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे थर्मल decomposition. see this is another important example, lead Pb, this is the symbol of lead nitrate. lead nitrate, when you heat lead nitrate, it converted into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. here one single reactant प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट से यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट कैटेगरी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सी दिस, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्लास.
मतलब आप पानी लोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सी दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, थोड़ा सा हम इसमें एसिड डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4, सो वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रो मीन्स इन द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर को आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दोगे, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो इन योर NCERT बुक्स हियर इज एन एक्टिविटी इज गिवन, यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस एक्टिविटी। यहाँ पर ये देखें, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ पर दिस इज़ ग्रेफाइट रोड, this and this is graphite rod, and this battery is connected with these 2 wire, and here water is poured into it. This is test tube, this is test tube। ओके, ये इसके बाद इसमें थोड़ा सा एसिड डाला और फिर ये बैटरी से करंट को फ्लो करेंगे। सो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब वाटर जो है यहाँ पर ये बुलबुले दिख रहे हैं आपको निकलते, ये छोटे छोटे बुलबुले, ये यहाँ पर जो बुलबुले हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। सो वाटर को हमने ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वाटर को हमने ब्रेक करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यू हैव टू लर्न दिस, ओके, इन योर NCERT बुक, यू कैन रीड इट, ओके। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ओके। नाउ another example of electrolysis of water is this is also an important category। ये in 2020 this reaction is comes, 2020 में भी रिएक्शन आई थी। see this silver chloride, this is AgCl silver chloride and sunlight। जब when you put silver chloride into sunlight, it will break into silver and chlorine gas, okay। when silver chloride turns gray in sunlight, ये जो silver chloride है ये क्या होगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये भी सारी रिएक्शन आपको याद करनी है। सो सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट converted into AgCl and chlorine, so this is another important class of decomposition reaction, okay। you have to learn about this। next, see this similar reaction, okay। see this similar reaction, silver bromide also behave in the same way। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, वहाँ पर AgCl था, यहाँ पर AgBr है। सो AgBr डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू Ag एंड ब्रोमीन। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो मैंने रिएक्शन आपको बताई है, दिस रिएक्शन अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो दिस इज ऑल 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ये 5 मैंने आपको बताई हैं, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आती है, इन्हीं में से पेपर आएगा, इसके आउट ऑफ कोई रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, ओके। सी दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन में किस किस की ज़रूरत है, एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी आइदर या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट हो, लाइट हो और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन को करने के लिए आइदर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन। सो हियर इज अनदर category of chemical reaction which energy is absorbed are known as endothermic reaction। this is another मतलब किसी रिएक्शन को कराने के लिए उसको हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़े, एनर्जी देना पड़े, उसको गर्म करना पड़े या लाइट देनी पड़े या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, तो ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, okay। now next, displacement reaction।
So what is this? What is displacement reaction? See this, iron, Fe आयरन, कॉपर सल्फेट यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ये आयरन सल्फेट और कॉपर में. सो सी इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस, मतलब आयरन जो है यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. आयरन डिस्प्लेस दिस कॉपर. सी दिस कॉपर, आयरन इस जगह आ जाएगा और कॉपर इस जगह आ जाएगा, दोनों ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा. सो और यहाँ से हियर इज़ आयरन एंड हियर इज़ कॉपर सल्फेट. सो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, अपनी जगह से हटा दे. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे. सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये जो आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट, ये सॉल्यूशन मतलब पानी में आपने घोल रखा है इसको. कॉपर सल्फेट यू डिजोल्व इट इन वाटर, एक्वस मीन्स डिजोल्व इन वाटर. सो पानी में डाला है और उसमें आपने थोड़ा सा आयरन डाल दिया है. सो क्या होगा, यहाँ से आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे उसकी जगह से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ so this is the definition. When an element displace another element, जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे दूसरे एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड. When an element displace another element from its compound, a displacement reaction occurs. Okay, this is the definition. See other example. See zinc and copper sulfate. तो zinc displace copper, zinc displace copper from copper sulfate solution. So here zinc sulfate बन जाएगा and copper अलग हो जाएगा, यहाँ से copper अलग हो जाएगा. See another example, lead displace copper, lead displace copper chloride. This is copper chloride, CuCl2 copper chloride in aqueous means dissolve in water. So lead displace copper from copper chloride and converted into lead chloride and copper is removed. So when displacement reaction occurs, displacement reaction कब होगी? Zinc and lead are more reactive. Zinc and lead are more reactive. जो ज़्यादा reactive होगा, zinc and lead are more reactive element, means more reactive elements displace less reactive element. More reactive elements displace less रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. सो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर. ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्शन करते हैं. दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सी अनदर टाइम. व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स. So when displacement reaction process, so more reactive element displace less reactive element. Zinc and lead are more reactive element than copper. They displace copper from its compound. Okay. Now see this another important category, double displacement reaction. This is double displacement reaction. See this example. सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड. सो एंड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. इस रिएक्शन में क्या रहा, देखो Na Ba की जगह आ गया है. Na देखो ये Na यहाँ पर आ गया है इस Ba की जगह, और Ba Na की जगह आ गया. मीन्स एक्सचेंज हो गई है इन दोनों की जगह, Na की जगह और Ba की जगह एक्सचेंज हो गई है. सो हियर सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, तो पहले सोडियम सल्फेट था, अब बेरियम सल्फेट बन जाएगा. पहले बेरियम क्लोराइड था, अब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. सो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन. हियर यहाँ पर आयन है, देखो यहाँ पर इस पे सोडियम आयन है, Na प्लस है. यहाँ पर बेरियम है, बेरियम 2 प्लस है. तो मतलब एक आयन in which there is an exchange of ion, एक आयन दूसरे आयन से एक्सचेंज हो जाए. when reaction in which
रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, ये इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जब आयन का एक्सचेंज हो जाए, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाए, ओके बदल जाए, एक्सचेंज हो जाए। सो एक्सचेंज ऑफ आयन, important thing is that exchange of ion. So here sodium ion replaced with barium ion, here sodium ion exchange with barium ion, so this reaction is called as double displacement reaction। मतलब एक आयन दूसरे आयन से जब एक्सचेंज हो जाएगा तो we call it double displacement reaction। और see another thing, Na2SO4 aqueous dissolve in water, BaCl2 aqueous dissolve in water। See this BaSO4, BaSO4 here is solid, मतलब ये solid है, means not dissolve in water, not dissolve in water, ये घुला नहीं है, solid form में ही है, बिना घुले हुए ही रखा हुआ है। जैसे कि आप पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दोगे या थोड़े से पत्थर डाल दोगे तो वो घुलेंगे नहीं, वो नीचे बैठ जाएंगे, बिना घुले हुए पानी के अंदर पड़े रहेंगे। सो उसी तरीके से ये जो आपको बेरियम सल्फेट दिख रहा है यहाँ पर, बेरियम सल्फेट नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में घुला नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में ही है। सो द वाइट, ये यहाँ पर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो जब कोई चीज़ घुलती नहीं है पानी के अंदर रिएक्शन होने के बाद, तो हम वो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन। तो जब कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती है वाटर में, व्हेन एनी केमिकल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन के बाद व्हेन एनी केमिकल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, देन वी कॉल इट प्रेसिपिटेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ प्रेसिपिटेट, इट इज़ अ प्रेसिपिटेट। सो here another important category, here another important category, any reaction that produce a precipitate, कोई भी reaction, any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction। Understand? Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction। कोई भी reaction जिसमें precipitate बनता हो, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मीन्स विच इज़ नॉट डिजोल्व इन वाटर आफ्टर रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ओके, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं। ओके, नाउ let's see another important category, oxidation and reduction। this is the most important category। see this reaction, copper react with oxygen and in the presence of heat produce copper oxide। okay, so copper oxide and hydrogen react with copper and water। if a substance gain oxygen, देखो यहाँ पर copper और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है। if a substance gain oxygen during a reaction, जब कोई रिएक्शन हो तो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर गेन ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन मिल रही है, कॉपर, दिस कॉपर गेन ऑक्सीजन व्हेन इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ले रहा है तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, हम उसको बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। सो हियर कॉपर गेन ऑक्सीजन, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। सी दिस कैटेगरी, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करे, छोड़ दे, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, सी दिस रिएक्शन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसके पास में ऑक्सीजन है तो ये अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा। देखो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी है, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, इसने भी यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी। तो इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो जब कोई ऑक्सीजन गेन करे तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। व्हेन ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है।
और अगर कोई ऑक्सीजन को लॉस करेगा, छोड़ देगा, तो हम बोलेंगे वो रेड्यूस्ड हो गया है। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजेस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन लूज कर दिए एंड इट इज बीइंग रेड्यूस्ड, तो ये क्या हो गया है, रेड्यूस हो गया है, तो ये रेड्यूस हो गया है। एंड द हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली है, तो जब कोई ऑक्सीजन को गेन करता है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब कोई ऑक्सीजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करी है, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो जब कोई ऑक्सीजन को गेन करे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और जब कोई ऑक्सीजन को रिलीज करे तो इट इज सेड टू बी रेड्यूस्ड। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इन दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स वन reactants get oxidized while the other gets reduced. One reactant, in other words, one reactant gets oxidized, एक oxidized होगा, while the other gets reduced, जबकि एक reduce होगा during reaction. So such reaction are called oxidation reduction reaction. जब एक substance oxidized हो and एक substance reduced हो, तो ऐसी reaction को हम बोलते हैं oxidation reduction reaction. When a substance gain oxygen, it is oxidized. When a substance lose oxygen, it is reduced. Okay, so this reaction is called oxidation reduction reaction. See this here in this reaction, copper oxide, copper loses oxygen, so इसका रिडक्शन हो रहा है। जब वो ऑक्सीजन को लूज करेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हियर सी दिस, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, सो जिंक ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। कार्बन गेन ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा तो ऑक्सीजन को लूज करेगा तो रिड्यूस, ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज। हियर सी दिस इंपॉर्टेंट क्लास, ये रिएक्शन आपको, जितनी भी रिएक्शन आपको बताएं सब आपको याद रखना है। सी दिस MnO2 lose its oxygen, MnO2 lose its oxygen in reaction 1. In reaction 2 HCl is oxidized, यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है टू क्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl is oxidized whereas MnO2 is reduced। MnO2 यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपको कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है आपको इस तरफ से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से, रिएक्टेंट साइड से। तो MnO2 लूज इट्स ऑक्सीजन मीन्स इट इज़ रिड्यूस्ड, जब कोई अपनी ऑक्सीजन को लूज करता है तो रिड्यूस्ड होता है। तो जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। व्हेन वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज देन अनदर रिड्यूस्ड, जब एक ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा। सो इन दिस रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड लूजेस इट्स ऑक्सीजन, सो इट इज manganese oxide, this is manganese oxide loses its oxygen, so it is reduced and hydrochloric acid chlorine, whereas MnO2 is reduced to MnCl2। HCl is oxidized, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl यहाँ पर हाइड्रोजन, ये HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू क्लोरीन, whereas MnO2 is reduced to MnCl2। okay, see if a substance, see the definition of this, okay, if a substance gain oxygen or lose hydrogen, अगर कोई substance, if a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized, अगर कोई substance ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को लूज करे तो ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके,
ओके, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, तो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करे और हाइड्रोजन को गेन करे तो इसको हम बोलेंगे रेड्यूस्ड. सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप याद रखें. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन टुडे. इट इज़ वेरी लेंथी. ओके, प्लीज़ जो भी आपको आज पढ़ाया इनके नोट्स बना लें, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यूर एनसीईआरटी बुक्स, आप सभी के पास अपनी एनसीईआरटी बुक रखें के रेफरेंस बुक के चक्कर में ना पड़ें. सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, आफ्टर दैट गोइंग थ्रू योर रेफरेंस बुक. 99% क्वेश्चन इसी में से आएंगे. मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैंने पूरे 10 से 15 साल की स्टडी किया है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन मी ऑन माय कमेंट बॉक्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंशन मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू.